A very warm good afternoon to all the attendees. Thank you so much for joining us today. We are just about to start our session. In today's session, we are going to talk about advanced advertising. आज के सेशन में हम advanced advertising के बारे में डिस्कस करेंगे. हमारे साथ आज के एक्सपर्ट हैं उमंग. उमंग जो है वो एडवर्टाइजिंग टीम से हैं और वो आज आपको एडवांस एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे. Before we move ahead with this session, we would like to understand if you all can see the screen and hear my voice, as well as have you completed your Flipkart advertising certification? For this, I'm sending you a poll and I would request all the attendees to please address the poll. मैं सभी attendees से request करूंगी, आपके screen पर एक poll visible होगा जिसमें दो questions होंगे. पहला, क्या आप सभी को screen दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज सुनाई दे रही है? और दूसरा question है, क्या आपने फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट किया है? पोल आपके स्क्रीन पर अभी विजिबल होगा. सभी अटेंडीज से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज इस पोल को देखकर एड्रेस करें और हमें अपडेट दें. Thank you very much everyone for addressing the poll. As I can see, most of the attendees are not facing any issue. There is only one person who's facing little bit of issue. I would request you to please check your network once. We have just checked the tool in the background and there is no error at our end. Request you to please check the network. That might help. And thanks for the update about the Flipkart advertising certification. So, Umang, I hope the poll is visible to you. Yeah, it is. Okay, so we can proceed further. Yes, sure. All right. Good afternoon, sellers. First of all, thank you so much for taking out time and joining us for today's discussion. So as Ria was explaining, we will be covering the advertising advanced methodologies today, typically in how to create the right campaigns and how to optimize your campaigns in the right and the best possible way. So just to give you context, आज का session, we'll be switching between Hindi and English because a lot of sellers have got a communication this regarding being a Hindi session, and a lot of sellers were aware that this is going to be an English session. So at my end, I'll just keep try to switch between the languages to ensure that most of us in the room are able to understand what we are discussing and there's a positive takeaway and outcome from this discussion. Okay, so to quickly move on, another thing that I wanted to highlight is that, I see that almost 76% of the audience who have joined have completed the Flipkart advertising certification. So thank you so much, everyone, for taking out time and completing this. This is, something that we launched last year with a vision to enable you to understand the Flipkart advertising construct, how we how does advertising work at the back end, what are the things that you should keep in mind, what are the things that we do in order to help you grow your advertising and your business on the Flipkart app and the platform. So yeah, quickly moving on. So the things that we are going to discuss today, so it will be the benefits of PLA, which is basically nothing but the Flipkart advertising. There are a lot of you must be aware that, for the last couple of weeks or, in the last, since July, we have gone live with a lot of new features, right? So बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो पहले एडवर्टाइजिंग में नहीं थे, अब आपको शायद वो दिख रहे होंगे. बहुत लोग आज यहाँ पे होंगे जिन्होंने लास्ट 1-2 हफ्ते में अपने वॉलेट या अपने कैंपेन्स में कुछ ट्रबल देखा होगा, एरर आए होंगे. तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही है बिकॉज हम लोग बैकएंड से बहुत सारा
जो प्रोडक्ट है उसको एनहांस करने का ट्राई कर रहे हैं। हम लोग बैकएंड पे बहुत सारी चेंजेस है जो हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं, एंड बहुत सारे फीचर्स है जो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, और आने वाले कुछ दिनों में आपको और भी नए फीचर्स आते हुए दिखेंगे, जिसके लिए हम लोग अलग से सेशंस भी होस्ट करेंगे, सो दैट एवरीवन ऑफ अस आर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स न्यू इन द प्लेटफॉर्म। उसके बाद हम लोग we will quickly check on how to do an FSN selection while we are trying to create advertising campaigns. What should be the right way to select FSNs, and then how do we optimize our campaigns in the right and the best possible way. So एक दो layer में basically optimization होता है। तो इनफैक्ट ऑप्टिमाइजेशन अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, एक कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन या एक कैंपेन का परफॉर्मेंस उसी मोमेंट स्टार्ट हो जाता है जब हम अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं उस कैंपेन्स के लिए। सो एक वहां से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो कि बाद में कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रहा है उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एंड फर्दर एक कैंपेन के अंदर एक पर्टिकुलर जो लिस्टिंग आईडी है या जो प्रोडक्ट है उस लेवल पे भी हम लोग जाके देखेंगे कि हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज, और हाउ कैन हम लोग ये इंश्योर करें कि द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंपेन इज एज पर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी। Sellers, in case you have any questions during the session, please feel free to post them on the Q&A tab. After the session, for the last 15-20 minutes, हम specifically Q&A पे spend करेंगे। तो आपको अगर कुछ भी questions या कुछ भी चीज समझना है, then आप अपने please Q&A tab में जाके post कर दीजिए। हम लोग session के end में आपके questions address करने का try करेंगे। Before we move on, just to give you a context of how advertising is placed today, तो ये बेसिकली एक स्नैपशॉट है कि आज हमारे साथ कितने सेलर्स जुड़े हैं, कितने सेलर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या हो रहा है। तो तकरीबन 15 से 18 हजार सेलर्स जो है वो आज के डेट में फ्लिपकार्ट पे मंथली एडवर्टाइज करते हैं, वो मंथली एक्टिव रहते हैं। ऑब्वियसली लास्ट के 6 महीनों में ये नंबर्स काफी अप एंड डाउन हुए हैं, बिकॉज मार्च अप्रैल मई तक एडवर्टाइजिंग कंप्लीटली शट डाउन थी। जून में जब चीजें खुली तो हम लोग बहुत लोग आज जो रूम में है वो लोग सब फिगर आउट कर रहे थे कि हमें क्या करना है, हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या मुझे एडवर्टाइजिंग में पैसा डालना चाहिए, क्या मेरा अभी कैश या वो। Umang, sorry to interrupt. Actually, a lot of sellers are saying if you can speak a little louder. Okay, sure. Hello, am I audible now, sellers? Can you just quickly raise your hands and let me know if you are able to hear my voice clearly and the screen is visible properly? Okay, great. Thank you. कि जैसा मैं कह रहा था कि जब मार्च के बाद जब हम लोगों ने जून में बिजनेस रिज्यूम किया तो अ लॉट ऑफ अस वेर इन अ फिक्स, राइट, कि हाउ डू वी गो अबाउट एडवर्टाइजिंग, हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं अपने वर्किंग कैपिटल को एडवर्टाइजिंग में लगा दूं, बहुत सारे सवाल थे जो हमारे मन में थे। बट आई बिलीव कि एवरी वन ऑफ अस जो आज ई कॉमर्स से जुड़े हैं वो ये अग्री करेंगे कि लास्ट के 2-3 महीने ई कॉमर्स के लिए सबसे बड़े महीने होते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफलाइन का जो प्रेजेंस है बहुत सारे वर्टिकल्स में, ऑफलाइन जहाँ पे पहले ज्यादा विजिबल था, ज्यादा एक्सपोजर था ऑफलाइन मार्केट का, अब धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द करेंट सिचुएशंस वो एक्सपोजर कम हो रहा है, और जो कस्टमर है बहुत लोग उनमें से अब ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ वर्टिकल्स है जो ग्रो कर रहे हैं, कुछ वर्टिकल्स है जो शायद उतना नहीं ग्रो कर रहे हैं। बट अगर ओवरऑल आप देखोगे एज अ सेलर, ओवरऑल सबके बिजनेसेस थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ ग्रो कर ही रहा है। तो ऑब्वियसली आज के डेट में 15 से 18 हजार, जैसे मैंने कहा कि सेलर्स एडवर्टाइज कर रहे हैं, हमारे पास तकरीबन 25,000 कैंपेन्स है जो किसी भी टाइम लाइव रहते हैं। एंड ऑल्सो वी डू अबाउट 6 to 8 lakh LIDs या 6 to 8 lakh products that are advertised on the platform. ये मैंने आपको इसलिए कहा कि अगर ये नंबर्स आपको बहुत हैवी लगेंगे तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई नया सेलर हूँ या फिर मैंने अगर आज तक एडवर्टाइज नहीं किया या फिर मैंने जस्ट हाल ही में शुरू किया है, अगर ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा है तो मेरे लिए क्या बचा है, डू आई हैव समथिंग लेफ्ट फॉर मी? द आंसर इज यस। क्योंकि जो अगर आप देखोगे सप्लाई जो है, जिसको हम लोग एड्स में या ई कॉमर्स में हम लोग जो सप्लाई बोलते हैं, बेसिकली वो है कि कितना एवेन्यू है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो हम लोग कॉन्स्टेंटली जो वो एवेन्यूज है उसको ग्रो करते जा रहे हैं। हम लोग आपके लिए ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियो ओपन कर दे रहे हैं, ताकि अगर ये 15 की जगह आज 25,000 और 30,000 सेलर भी आके अगर हमारे साथ एडवर्टाइज करना चाहे, फिर भी सबके लिए ऑप्शन होगा अपना प्रोडक्ट से अपना पोर्टफोलियो को ग्रो करे और फ्लिपकार्ट के साथ जुड़े और अपने बिजनेस को हमारे साथ आगे ले जाए। आपको
जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैसे इम्पैक्ट करता है, राइट, व्हाई शुड आई एडवर्टाइज। सबसे पहला तो है कि मुझे क्यों करना चाहिए। तो ये क्यों का जवाब देने के लिए वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू टू सेलर सिनेरियोज। वन इज विद रिगार्ड्स टू न्यू सेलर्स, जो कि काफी नए सेलर्स है, उनका लिस्टिंग भी नया है, और दूसरे हैं एस्टैब्लिश सेलर्स। ये एस्टैब्लिश सेलर्स वो सेलर्स है जो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे 5 लाख के ऊपर मंथली सेल्स कर रहे हैं। तो ये समझने के लिए कि अगर एडवर्टाइजिंग मेरे सेल्स पे, या जीएमवी का मतलब सेल्स ही यहाँ पे है, तो अगर मेरे सेल्स मुझे बढ़ाने हैं या फिर अगर मैं एडवर्टाइजिंग करता हूँ तो मेरे सेल्स पे कैसा इम्पैक्ट होगा। सो टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी डिड वाज बेसिकली वी टुक टू सेलर सेट्स, वन वाज न्यू सेलर्स एंड वन वाज एस्टैब्लिश्ड सेलर्स, एज आई एक्सप्लेन्ड, एंड देन उन सेलर सेट्स में से व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ट्राइड टू रीड द ट्रेंड। अब जो सेलर्स है, नए सेलर्स और जो एस्टैब्लिश सेलर्स है, उनको भी हमने फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा ये था जो एडवर्टाइज कर रहा था और एक हिस्सा ये था जो एडवर्टाइज नहीं कर रहा था। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीना का जब हमने पूरा स्टडी किया, तो नए सेलर्स और एस्टैब्लिश सेलर्स दोनों ही केस में जहां पे सेलर्स ने एडवर्टाइज किया, उनका जो सेल्स है वो नॉन एडवर्टाइजिंग सेलर्स से काफी ऊपर था। तो एक नए सेलर के लिए उनका सेल्स ऑलमोस्ट 2 गुना हो जाएगा अगर वो लोग कंटिन्यूअसली एडवर्टाइज कर रहे हैं 6 महीने तक। उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने सेलर को अपने सेल्स को 2 गुना तक बढ़ा पाए। एंड ऑल्सो जो एस्टैब्लिश सेलर्स है या जो रेगुलर सेलर्स है, उनको भी तकरीबन 50% की बढ़त मिलती है अगर वो लोग एडवर्टाइज करते हैं। सो एडवर्टाइजिंग जो है वो सिर्फ नए सेलर्स या सिर्फ एग्जिस्टिंग सेलर्स या एस्टैब्लिश सेलर्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। कोई भी आज अगर चाहे एडवर्टाइज करने का, तो उसको अगर वो सही तरीके से करे तो उसमें उनको गुडनेस मिलेगी ही मिलेगी। एडवर्टाइजिंग करने का एक कोर आइडिया ये है कि जहां पे हमने ये सेलर को सेलर सेट्स को कंसिडर किया था और जहां पे हमने इनकी एनालिसिस की थी, एक चीज ये कांस्टेंट था कि दोनों ही सेलर्स ने या दोनों ही सेट के सेलर्स ने रिकरिंग बेसिस पे अपने बिजनेस का या अपने सेल्स का 3% एडवर्टाइजिंग के लिए रोल बैक किया था। इसका मतलब ये है कि अगर टुडे माई सेल्स इज 1 लाख रुपीज, तो मैं 3,000 रुपए एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर उसके अगले महीने मेरी सेल्स 2 लाख रुपए तक बढ़ती है, तो मैं एडवर्टाइजिंग में 6,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। तो समानता रखने के लिए, पैरिटी रखने के लिए इन दोनों ग्राफ्स में हमने ये कंसिडर किया है कि जो सेलर्स है यहाँ पे जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने एज अ रोल बैक 3% ऑफ द सेल्स अपना एडवर्टाइजिंग में यूटिलाइज किया। ये तो हो गई बात सेल्स ग्रो करने की। अब हमने जैसा कि डिस्कस किया कि एडवर्टाइजिंग जो होती है वो प्रोडक्ट लेवल पे चलती है। तो प्रोडक्ट लेवल पे क्या इम्पैक्ट होता है? अगर किसी प्रोडक्ट लेवल पे मैं देखना चाहूँ तो एलआईडी लेवल पे 2 चीजें होती है। एक होती है एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव होता है विजिबिलिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स। तो अब ये समझने के लिए कि एडवर्टाइजिंग विजिबिलिटी और सेल्स को अलग अलग कैसे अफेक्ट करता है, हमने फिर से क्या किया, हमने एलआईडी या लिस्टिंग आईडीज लिए या प्रोडक्ट लिए, मतलब आप एलआईडी एसकेयू कुछ भी बोल सकते हो आपके लिए जो इजियर टर्मिनोलॉजी है इंटरनली समझने के लिए। तो हमने कुछ एलआईडीज लिए, ये दोनों 2 सेट के एलआईडीज लिए, जहाँ पे इनकी जो परफॉर्मेंस है बिफोर एडवर्टाइजिंग दोनों सेम है। इनको समान सेम टाइप के सीटीआर मिलते हैं, सेम टाइप का कन्वर्शन है, सेम टाइप का विजिबिलिटी है, तो ऑलमोस्ट सेम इनकी परफॉर्मेंस रहती है। अब हमने इनमें से एक सेगमेंट चूज कर लिया जहां पे हमने एडवर्टाइजिंग रन किया, और एक सेगमेंट को कंटिन्यू रहने दिया जहां पे एडवर्टाइजिंग नहीं चल रहा है। अब क्या है कि हमने जो देखा है कि हम चाहते थे कि हम इसको थोड़ा सा सिर्फ एडवर्टाइजिंग का ड्यूरेशन के लिए नहीं स्टडी करें, हम पहले और बाद का भी थोड़ा देखना चाहते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने एडवर्टाइजिंग के पहले के 3 वीक्स का स्टडी किया, हमने उसके बाद के 3 वीक्स पे इन पे एडवर्टाइजिंग चलाई, और एडवर्टाइजिंग खत्म होने के बाद के 4 हफ्तों भी हमने इन पे जो है हमारा जो एनालिसिस था वो कंटिन्यू रखा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिडिल के जो 3 हफ्ते हैं वहां पे डेफिनेटली एक ग्रोथ आनी ही थी, बिकॉज वही पीरियड था जहां पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। तो जब आप कोई कैंपेन चलाते हो, ऑटोमेटिकली इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ विजिबिलिटी एंड सेल्स, एंड हेंस एज यू सी ऑन द ग्राफ ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज द राइट हैंड साइड, बोथ विजिबिलिटी एंड सेल्स हैव गॉन अप व्हेन a campaign was running on these products. However, जो देखने वाली बात यह है कि वो बाद के जो 4 हफ्ते हैं, मतलब अगर कैंपेन खत्म होने के बाद के अगर 4 हफ्ते भी हम देखें, तो चौथे हफ्ते के बाद भी विजिबिलिटी और सेल्स दोनों ही 80 to 85% बढ़े हुए थे कंपेयर्ड टू प्रोडक्ट जहां पे एडवर्टाइजिंग कभी चला ही नहीं था। अब ये चीज समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
एडवर्टाइजिंग जो होती है, एडवर्टाइजिंग बेसिकली आपके प्रोडक्ट के रैंकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। फ्लिपकार्ट का जो आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट पे अगर आप कुछ सर्च करते हो, जो प्रोडक्ट्स आपको दिखते हैं या आप एडवर्टाइजिंग भी करते हो, तो उसमें जो आप बिडिंग करते हो वो आप कीवर्ड के बेसिस पे नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि कोई एडिडास सर्च करने आया और आप नाइकी के जूते बेच रहे हो और आपने एडिडास को कीवर्ड लगा दिया तो आपका नाइकी का जूता भी एडिडास पे दिख जाएगा। वो जो लॉजिक है वो फ्लिपकार्ट पे नहीं चलता है। या फिर मैं आपको एक बेटर एग्जांपल देता हूँ कि आज अगर Uma, आपको Uma, हेलो या can you speak little slowly? श्योर Yeah, the comments are coming. You're going a little faster. ओके Yeah. श्योर Thank you. Sorry to interrupt. नो वरीज रिया, थैंक्स लॉट। सो सेलर्स, जैसा कि मैं कह रहा था ना कि अगर आप देखोगे एंड सेलर्स, ये सारे जो स्लाइड्स है ये बेसिकली एक रन थ्रू स्लाइड्स है, तो ये बस आपका कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि मैंने देखा कि बहुत आप लोगों में से लोग हैं जो एडवर्टाइज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ये आपके लिए थोड़ा सा रिफ्रेशर है, ठीक है। मैं शायद थोड़ा फास्ट इसलिए भी जा रहा हूँ कि जो हमारा मेन आज ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन और कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का, तो आई थिंक मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा उस पर ज्यादा स्ट्रेस करूँ, उस पर ज्यादा फोकस करूँ। ये सारे गुड टू नो थिंग्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट के कॉन्स्ट्रक्ट बैकएंड की चीजें हैं। आई थिंक बेसिक वेबिनार्स में भी हम ये सारा कवर करते हैं, ठीक है। तो जस्ट इन केस अगर आप कहीं पे यहाँ पे एक छोटा मोटा पॉइंट अगर मिस भी होता है, देन देयर इज नथिंग दैट यू लूज ऑन। सो आई विल एंश्योर दैट मैं जहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए हमें ऑप्टिमाइजेशन का और प्रोडक्ट सिलेक्शन का, मैं उस पर एडिक्वेट टाइम स्पेंड करूंगा, ठीक है। तो हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे देखोगे कि हम लोग कीवर्ड एडवर्टाइजिंग क्यों नहीं करते हैं। सो कीवर्ड एडवर्टाइजिंग टेक्निकली होता है क्या है कि अगर आप कैजुअल शूज सर्च करते हो, राइट, अगर मुझे आज कैजुअल शूज सर्च करनी है, मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे कैजुअल शूज सर्च करता हूँ, तो वहां पे मुझे कैजुअल शूज के साथ साथ फॉर्मल शूज, चप्पल, सॉक्स, एंकलेट्स, बहुत सारी चीजें दिखती है। क्यों? क्योंकि इन सारे प्रोडक्ट्स के जो सेलर्स है, एडवर्टाइजर्स है, इन लोगों ने कैजुअल शू के कीवर्ड पे बिडिंग किया होगा। एज अ कस्टमर अगर हम लोग सोचे, एज अ सेलर, तो मुझे लगता है कि हाँ बहुत अच्छा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरे को प्रोडक्ट दिखाने मिल रहा है। बट अगर एज अ कस्टमर मैं सोचूं, मुझे खरीदना था कैजुअल शू, अगर मुझे कोई ऐप पे 15 इररिलेवेंट चीजें दिखेंगी, देन आई एज अ कस्टमर माइट बाउंस ऑफ फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। मैं शायद खरीदूंगा ही नहीं, मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि यार मुझे जो खरीदना है शायद वो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। फ्लिपकार्ट में क्या होता है, अगर आप कैजुअल शूज सर्च करते हो तो फ्लिपकार्ट आपको सिर्फ कैजुअल शूज ही दिखाता है, जिससे कि आपका जो स्क्रीन टाइम है या जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो उस पर्टिकुलर वर्टिकल पेज पे या कैटेगरी के पेज पे, वो टाइम ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे ये हम लोग इंश्योर कर पाते हैं कि कस्टमर चला ना जाए। कस्टमर एटलीस्ट परचेज करने का इंटेंट से आया है, तो हम लोग उसको कुछ ना कुछ दिखा के, रेलिवेंट प्रोडक्ट दिखा के हम उनके परचेज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो इसी के लिए दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि हम लोग क्यों कीवर्ड पे बिडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसका आपने जो सर्च हो रहा है, अगर कैजुअल शू सर्च हो रहा है, अगर वो कैजुअल शू आपके प्रोडक्ट के कैटलॉग पे कहीं पे भी मेंशन्ड है, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, बुलेट पॉइंट्स में, 5 कीवर्ड का ऑप्शन होता है हर एलआईडी पे ऐड करने के लिए, वहां पे अगर कहीं पे भी ये कैजुअल शूज मेंशन्ड है तो आपका प्रोडक्ट क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर ये ऐसे ही लॉजिक में काम करना है तो हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करें, आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है। तो वो समझाने के लिए अगर आप देखोगे आपके स्क्रीन पे एक सर्च हमने दिखाया है आपको कुर्तीज का। अब जो चौथा कुर्ती है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको रेड बॉक्स में हाईलाइटेड है, ये कुर्ती यहाँ पे एड के थ्रू एनेबल्ड है। इसका मतलब ये है कि ये कुर्ती जो है, ये अनमी वुमेन्स कलर बैक कुर्ता जो है, ये ऑर्गेनिकली शायद दूसरे या तीसरे पेज पे आ रहा था, बट क्योंकि इनके सेलर ने एडवर्टाइज किया तो हेंस ये ऊपर आके दिखा रहा है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप ग्लोबल ई कॉमर्स का स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, देन 96% प्लस कस्टमर्स जो होते हैं वो पहले 30 या 40 प्रोडक्ट्स में से अपना सिलेक्शन या अपना परचेज कर लेते हैं। तो अगर हमारा प्रोडक्ट चौथे, पांचवें, सातवें पेज पे जा रहा है, देन हमारा वो परचेज पे या हमारे ओवरऑल सेल्स पे भी वो इम्पैक्ट करेगा। हेंस जब आप फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइज करते हो तो जो एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग को ग्रो करना, और अपने रैंकिंग को ग्रो करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे स्लॉट्स में प्लेस कर सकोगे, जिससे कि आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा क्लिक्स और ज्यादा सेल्स की आप एक एस्पिरेशन रख सकते हो। तो रैंकिंग की जब हमने बात की है तो ये समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो कौन से फैक्टर है जो रैंकिंग में जाते हैं।
पहला होता है CTR या फिर क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब ये होता है कि कितनी बार आपका प्रोडक्ट दिखा है वर्सेस कितनी बार आपके प्रोडक्ट पे लोगों ने क्लिक किया है। सपोज आज कुर्तीज जो है फ्लिपकार्ट पे आज 100 लोगों ने कुर्ता सर्च किया, 100 लोगों को ये प्रोडक्ट्स दिखे और उन 100 में से 20 लोगों ने बेसिकली आपके इस प्रोडक्ट पे, ये चौथे जो प्रोडक्ट है जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू है, उस पर क्लिक किया, ठीक है। देन ये जो प्रोडक्ट है इसका जो CTR होता है या क्लिक थ्रू रेट होता है वो बन जाता है 20/100, तो वो उसका CTR बन जाता है 100/20, बेसिकली उसका 5% CTR बन जाएगा आपका, ठीक है। कन्वर्शन होता है कि कितनी बार वो दिखा है वर्सेस कितनी बार वो बिका है। मतलब अगर 20 लोगों ने देखा है और उसमें से अगर आपका 5 लोगों ने खरीदा है, मतलब आपका कन्वर्शन रेट जो है वो 25% हो गया। क्वालिटी जो होती है ये डिराइव्ड मैट्रिक्स होती है, ये डायरेक्टली कोई नंबर नहीं होता है, बट इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि आपका रिटर्न्स, रेटिंग्स, आपका कैटलॉग, आपका इमेज, आपका प्राइस पॉइंट, सो बहुत सारे चीजें जो क्वालिटी में जाते हैं। अब जैसा कि आपने समझा होगा कि इन सब में से जो चीजें मैंने अभी कही, इनमें से आपका कंट्रोल डायरेक्टली किसी पे भी नहीं है, तो फिर एड्स वहां पे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये तीनों चीजों के अलावा रैंकिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए एकमात्र इनडायरेक्ट फैक्टर होता है, वो होता है CPC बिड। तो अगर एक एनवायरनमेंट में ये सोचूं कि जहां पे 50 सेलर है जिनका सेम CTR है, जिनका सेम कन्वर्शन है और जिनका सेम क्वालिटी है, फ्लिपकार्ट किसका प्रोडक्ट को पहले दिखाएगा, किसके प्रोडक्ट को बाद में दिखाएगा? तो वहां पे आपकी CPC बिड होती है, जो CPC बिड काम में आ जाती है। तो वहां पे CPC बिड डिसाइड करता है कि आपके प्रोडक्ट्स को कैसे विजिबिलिटी या पहले कैसे वो प्रोडक्ट रैंकिंग में आगे बढ़ेगा। हेंस ऑर्गेनिक रैंकिंग के भरोसे अगर हम लोग रहेंगे तो बहुत ज्यादा ही डिपेंडेंसी हो जाएगी, बिकॉज हम अपने एंड से भी चाहते हैं कि हम कुछ इन्फ्लुएंस करें ताकि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके, ज्यादा दिखे। तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऑप्टिमाइजेशन, जैसा मैंने पहले कहा था, 3 लेयर में होता है। सबसे पहला स्टार्ट वहीं से हो जाता है जहां से हम FSN सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं और उसके बाद हम लोग लिस्ट कैंपेन के अंदर जाके, एड ग्रुप के अंदर जाके LID का जो मैट्रिसेस है वो रीड करके हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, जिनके बारे में आपको आगे में समझाऊंगा। ओके, कुछ नई चीजें हैं। एडवर्टाइजिंग सर्टिफिकेशन, आई थिंक हम सब ने देखा है कि ऑलमोस्ट 80% सेलर्स आर अवेयर के सर्टिफिकेशन कहाँ पे है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, ये एडवर्टाइजिंग टैब में आपको एक सर्टिफिकेशन मिलती है। रिक्वेस्ट यही रहेगा आप कर लीजिए, ये टिपिकली आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बट डेफिनेटली इसमें टेक अवे बहुत है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इन ऑर्डर टू एडवर्टाइज इन द राइट वे ऑन द फ्लिपकार्ट ऐप एंड डेस्कटॉप। ओके, बहुत लोगों ने देखा होगा कि एक डिफरेंशियल प्राइसिंग फीचर भी हमने लॉन्च किया है अगस्त के महीने में। बेसिकली इसके माध्यम से आप होम पेज, लिस्टिंग पेज और प्रोडक्ट पेज पे अब अलग अलग CPC बिड सिलेक्ट करते हो। तो जहां पे आपको लगता है कि रिकमेंडेशन के आधार पे आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा होम पेज पे दिखते हैं शायद, या कि आपका प्रोडक्ट, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं इलेक्ट्रॉनिक्स का या लाइफस्टाइल का जो सेलर्स हमारे साथ आज है, ये सारी कैटेगरीज में हमारे पास बहुत ट्रैफिक आता है। बहुत लोग आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, बहुत लोग आते हैं जो हमारे से कपड़े खरीदते हैं। तो अब इनके जो होता है रिकमेंडेशन के बेसिस पे, अगर आप होम पेज पे बिडिंग करते हो या प्रोडक्ट पेज पे बिडिंग करते हो, तो होम पेज या प्रोडक्ट पेज पे टिपिकली इनको आपके प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। प्रोडक्ट पेज तो किसी और का प्रोडक्ट के पास जो दूसरा ऑप्शन नहीं है, साइट सिंस आप कीवर्ड पे बिडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने क्रॉस ब्रांड को टारगेट नहीं कर पाते हो। बट अगर आप प्रोडक्ट पेज पे एग्रेसिवली बिडिंग करोगे, देन किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट पेज के नीचे भी आपके प्रोडक्ट दिख सकते हैं। ठीक है, होम पेज पे रिकमेंडेशन बेस्ड होता है। तो अगर मुझे पता है कि मेरा जो वर्टिकल है वो बहुत हैवी ट्रैफिक वर्टिकल है, और अगर मैं होम पेज पे बिड करता हूँ एग्रेसिवली, तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो होम पेज पे रिकमेंडेशन के थ्रू भी दिखेगा। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, तो ये भी एक फीचर है जो हमने लॉन्च किया है। हम बहुत जल्द इसके ऊपर एक सेपरेट वेबिनार होस्ट करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपको इनवाइट मिल जाएगा, जहाँ पे हम सिर्फ नए फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा उस पर। आपको काफी डिटेल में हम समझाएंगे कि ये कैसे चलता है, क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। हमने 2 सेशन ऑलरेडी किए हैं और मोस्ट लाइकली हम लोग अगले हफ्ते एक और सेशन प्लान कर रहे हैं, जिसका आपको इनवाइट्स भेज दिया जाएगा।
तो जैसा कि मैंने कहा कि होम पेज पे कैसे दिखता है, तो होम पेज पे जैसे आप देख रहे हो, अगेन जैसे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स या वाटर प्यूरिफायर, तो ये सारी ऐसे कैटेगरी है, ऐसे वर्टिकल्स है जहाँ पे ट्रैफिक ऑटोमेटिकली अच्छा खासा रहता है। मोबाइल्स होते हैं, टीवी पकड़ लो, आप कपड़े पकड़ लो, जीन्स पकड़ लो, एक्सेसरीज पकड़ लो। तो इन सब कैटेगरीज में क्या होता है, सिंस ट्रैफिक ज्यादा होती है, तो कस्टमर जब आता है अपने फ्लिपकार्ट ऐप को खोलता है, तो अगर उसने पहले कभी इन कैटेगरीज में या इन वर्टिकल्स में ब्राउज किया होगा, तो उसको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट करके हम एक 3 ग्रिड व्यू में प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, एडवर्टाइजर्स के जो नॉमिनेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर तो बेसिकली अगर आप होम पेज पे कोई भी और एड प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है कि आपको लाखों में बिडिंग करना पड़ता है, बजट लगाना पड़ता है, तब जाके होम पेज पे आपके प्रोडक्ट्स दिखते हैं। बट प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स के थ्रू से, सीपीसी के माध्यम से आप इसको अब अचीव कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट का स्कोप है होम पेज पे जाने का, तो डेफिनेटली आप उस पर ट्राई करो ये फीचर्स को, और कैंपेन रिपोर्ट देख के डिसाइड कर लो अगर आपको लगता है कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ओके, इसके अलावा हमने एक और चीज लॉन्च की है जो है सर्च टर्म रिपोर्ट। अब सर्च टर्म रिपोर्ट आपको 2 लेयर में मिलेगा। हर एक कैंपेन लेवल पे आपको सर्च टर्म रिपोर्ट मिलेगी, और कैंपेन के अंदर एड ग्रुप लेवल पे आपको सर्च टर्म रिपोर्ट मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी अगर कैंपेन चलाते हो, राइट, तो उस कैंपेन के अंदर आपको ये पता चलेगा कि इस कैंपेन के अंदर कौन से सर्च टर्म पे मुझे कितना व्यूज, कितना क्लिक्स, कितना आरओआई, कितना कन्वर्शन क्या मिला है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ सर्च टर्म्स ऐसे हैं जहां पे आपका पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है और आपको उतनी कन्वर्शन या आरओआई नहीं मिल रही है, तो उन सर्च टर्म्स को अगली बार कैंपेन क्रिएट करते टाइम पे एड ग्रुप लेवल पे जब आप नेगेटिव कीवर्ड ऐड का ऑप्शन आता है, अप टू 5 नेगेटिव कीवर्ड आप एवरी एड ग्रुप में डाल सकते हो। तो उन सर्च टर्म्स को आप कैंपेन क्रिएट करते टाइम पे एज नेगेटिव कीवर्ड्स हाईलाइट कर दो। सो आपके जो प्रोडक्ट्स है, अगर वो सर्च टर्म्स फिर से कभी आ रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट्स उन सर्च टर्म पे नहीं दिखेंगे, और आपका जो पैसा है जो वहां पे खर्चा हो रहा था अननेसेसरीली, वो आप रोक सकते हो। यू कैन स्टॉप द अननेसेसरी स्पेंड दैट यू वर इनकरिंग with regards to the negative search terms that otherwise would be draining a lot of money from your end. Okay, अब हम लोग आ गए हैं FSN सिलेक्शन पे। तो सेलर्स जो लोग हमें बेसिक वेबिनार्स में ज्वाइन किए होंगे पहले, आपको पता है कि जब हम लोग बेसिक वेबिनार में FSN सिलेक्शन का बात करते हैं, इट इज मोर रेलिवेंट फॉर न्यू सेलर्स, राइट, कि अगर आपने जस्ट अपना प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया है, आपको पता नहीं है कहाँ से एडवर्टाइज करें, कैसे एडवर्टाइज करें, तो उस केस में क्या होता है कि हम वहां पे कुछ हमारे हाई परफॉर्मेंस लिस्टिंग, न्यू लॉन्चेस, सॉर्ट बाय कैटेगरी, फिल्टर बाय स्टॉक, फिल्टर बाय प्राइस, तो बहुत सारे हमने फिल्टर्स लगा के रखे हैं कैंपेन क्रिएशन के पेज पे, जहां से आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको फनल डाउन करके एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो आपने कभी भी हाई पोटेंशियल लिस्टिंग किया होगा, तो वो शायद आपके टोटल 100 प्रोडक्ट्स में से 20 प्रोडक्ट दिखा देगा और आपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला दिया। बट वो होता है बेसिक वे ऑफ स्टार्टिंग द एडवर्टाइजिंग वे ऑन द फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म। मतलब वो तो बहुत ज्यादा ही सामान है, इजी है, बिकॉज उसका जो कंस्ट्रक्ट है या उसका जो लॉजिक है या उसमें जो आपको दिख रहा है, वो सिर्फ उस बेसिस पे है कि जो सिस्टम आपके प्रोडक्ट के पढ़ के समझ सकता है। तो सिस्टम को जो लगता है कि इस प्रोडक्ट में ये है वो है, तो उस बेसिस से हम लोग उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। अब हम लोग जो सीखेंगे वो है थोड़ा सा एक लेवल डीप जाके राइट वे ऑफ सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट्स। तो जैसा कि आप सबने देखा होगा, आप सबके सेलर डैशबोर्ड पे एक टैब है, ग्रोथ टैब। ये एडवर्टाइजिंग से थर्ड लेफ्ट टैब होती है। इस ग्रोथ टैब पे जब आप आओगे, आपको एक रिपोर्ट मिलेगा, वो होगा सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट। ये आइदर आपको डायरेक्टली ग्रोथ के अंदर दिखेगा, और अगर आपको डायरेक्टली ग्रोथ के अंदर नहीं दिख रहा है तो परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा, जहां पे आपको सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट दिखेगी। अब पहले क्या था कि ये सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट सिर्फ एक हफ्ते के लिए अवेलेबल था। तो अगर मैं आज जैसे 16 तारीख है, अगर मैं आज रिपोर्ट निकालता, तो ये रिपोर्ट मुझे 8 सितंबर से 15 सितंबर का रिपोर्ट देती। करंटली ये जो डेट रेंज है, ये 30 डे एंड अप टू 90 डे अवेलेबल है आपके लिए, ताकि आप ये समझो कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो ये रिपोर्ट है क्या? तो ये रिपोर्ट अगर आप देखोगे, अगर आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, आप लोगों में से बहुत लोग आज के बाद जाके देखेंगे इस रिपोर्ट को पहली बार। सो ये रिपोर्ट बेसिकली आपको हर प्रोडक्ट लेवल पे
आपके हर प्रोडक्ट लेवल पे कितने क्लिक्स, कितना कन्वर्शन, कितना व्यूज मिल रहा है आपको, ये रिपोर्ट आपको वो नंबर्स बताएगा। अब वो नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा अभी स्क्रीन से अपना ध्यान हटाओ और सिर्फ सुनो कि मैं क्या समझा रहा हूँ, कि अगर एक प्रोडक्ट होता है, राइट, अगर मैं प्रोडक्ट एडवर्टाइज करता हूँ तो सिर्फ 4 सिचुएशन होता है जो पॉसिबल होता है। एक, वो प्रोडक्ट अच्छा दिख रहा है, अच्छा बिक रहा है। एक, वो प्रोडक्ट अच्छा दिख रहा है पर ज्यादा नहीं बिक रहा है। एक, वो ज्यादा नहीं दिख रहा है पर अच्छा बिक रहा है। और लास्ट, वो ना तो दिख रहा है ना तो बिक रहा है। ठीक है, सो आई एम श्योर आप सबने इस स्टेटमेंट को फॉलो किया था। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 4 सिनेरियो पॉसिबल है एक प्रोडक्ट को जब आप एडवर्टाइज करते हो। एक, उसका क्लिक्स और उसका कन्वर्शन दोनों पॉजिटिव है। एक, सेकंड, उसका क्लिक्स पॉजिटिव है, कन्वर्शन नेगेटिव है। थर्ड, उसका क्लिक्स नेगेटिव है, कन्वर्शन पॉजिटिव है। फोर्थ, उसका क्लिक्स और कन्वर्शन दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो अब जो होगा कि जब अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव का जो डिमार्केशन है, राइट, नेगेटिव और पॉजिटिव तो बहुत बड़े टर्म हो गए, अब हम लोग उसको कैसे देखेंगे। ये होती है जो आपको एक सैंपल ऐसे आपको शीट मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि अब मुझे पॉजिटिव का भी तो मुझे डेफिनेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमें नंबर से पता नहीं चलेंगे। तो टिपिकली क्या होता है कि जो अगर हम लोग एक हफ्ते का डेटा रीड कर रहे हैं तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि अगर 50 क्लिक्स या 50 पीपीवीज एक हफ्ते में मिले हैं तो वो पॉजिटिव पीपीवीज है। और अगर वो 50 के वर्सेस अगर मेरा कन्वर्शन 1% है तो मैं उसको पॉजिटिव डिफाइन करूंगा। मतलब 50 और उसके ऊपर पॉजिटिव और 50 और उसके नीचे नेगेटिव, 1% और 1% के ऊपर पॉजिटिव और 1% के नीचे नेगेटिव। तो अब मुझे पॉजिटिव कन्वर्शन और पॉजिटिव क्लिक्स का डेफिनेशन भी मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इन प्रोडक्ट्स को बाइफरकेट करना है। ठीक है, तो जहां पे मुझे लगता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है आरओआई, ठीक है, तो मैं उन एफएसएन्स को या उन एलआईडीज को एडवर्टाइज करूंगा जहां पे मेरा क्लिक्स और कन्वर्शन दोनों पॉजिटिव है। और मैं उन पे 2 टाइप के कैंपेन चला सकता हूँ। एक, मैं सीपीसी कैंपेन चलाऊं, बेस सीपीसी को सीपीसी डाल के, सो दैट मेरा ज्यादा खर्चा ना हो। या फिर अगर मेरे पास मार्जिन के इश्यूज है तो मैं स्मार्ट आरओआई कैंपेन चलाऊं। सेलर्स बाय डिफॉल्ट स्मार्ट आरओआई कैंपेन का यूसेज में आपको थोड़ा सा टैक्टफुल होना पड़ेगा, बिकॉज स्मार्ट आरओआई क्या करता है, ऑर्गेनिकली एज अ प्रोडक्ट वो आपका आरओआई को ऑप्टिमाइज करता है। स्मार्ट आरओआई ऑलवेज ये गारंटी नहीं करेगा कि आपके सेल नंबर्स बढ़ते रहे। ठीक है, और एडवर्टाइजिंग जब आप करते हो, द बेस्ट वे टू रीड कि एडवर्टाइजिंग आपके लिए अच्छा कर रहा है या बुरा इज टू चेक आपका डेली रन रेट कितना हो रहा है। मतलब आज अगर मैं 100 प्रोडक्ट बेचता हूँ दिन का, एडवर्टाइजिंग के बाद क्या मेरा वो 100 प्रोडक्ट 200 बन रहा है, क्या वो 250 बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आरओआई देखता रहूंगा ना, तो ऐसा हो सकता है कि आज मैं 2000 रुपए खर्च करके या 5000 रुपए खर्च करके 100 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कल के डेट में मैं 2000 रुपए खर्च करके 100 प्रोडक्ट बेचूंगा। तो भले ही मैं वहां पे 3000 रुपए बचा रहा हूँ, बट मेरी जो ओवरऑल बिजनेस है वो शायद नहीं ग्रो करेगी। तो उसके लिए क्या है, बेस सीपीसी पे प्रोडक्ट कैंपेन चलाना बिकम्स इजियर टास्क, और उससे क्या है कि हमें ज्यादा गुडनेस मिल सकती है। ठीक है, जिन प्रोडक्ट पे जहां पे क्लिक नेगेटिव है या पीपीवी नेगेटिव है, 50 के नीचे है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट्स एनफ दिख ही नहीं रहे हैं, मतलब वो ज्यादा लोगों को दिख ही नहीं रहा है। तो वहां पे क्या है कि वहां पे हमें सीपीसी कैंपेन चलाना है, और वहां पे हमें उसको तब तक पुश करना है जब तक हर प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा बन नहीं जाता। ठीक है, इन पूरे चीज में 2 चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी सेलर्स। पहला है कि जैसे मैंने कहा कि 50 पीपीवी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो 51 भी पॉजिटिव है और 1000 भी पॉजिटिव है। तो क्या मैं 51 क्लिक्स वाला प्रोडक्ट को और 1000 क्लिक्स वाला प्रोडक्ट को सेम कैंपेन में रखूंगा? आंसर इज नो। द रीजन बीइंग इज कि अगर मैं 1000 क्लिक और 50 क्लिक वाले प्रोडक्ट को एक कैंपेन में रख दूं, तो जो कैंपेन का बजट होगा उसका 95% ऑफ द मनी ये 1000 क्लिक वाला प्रोडक्ट ले जाएगा। और जो मेरा कम विजिबिलिटी वाला प्रोडक्ट है, जिसको मैंने माना है कि वो अच्छा प्रोडक्ट है, वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा।
तो उस केस में क्या है कि हम लोग बाइफरकेट कर देंगे कि कि विजिबिलिटी का बकेट बना देंगे। शायद 50 से 300 का हमने एक बकेट बना दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल 300 से 700 का बनाया, ठीक है। तो हम लोग वैसे उसको बकेट कर देंगे ताकि हर प्रोडक्ट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ग्रो करने की, ठीक है। अब सेकंड और एक सिचुएशन क्या होता है, और ये वाला लाइफस्टाइल के सेलर्स के लिए बहुत ज्यादा वैलिड होगा, कि अगर सपोज मैं जूते बेच रहा हूँ, ठीक है, जूते में क्या होता है, मल्टीपल साइज होते हैं या मल्टीपल डिजाइन होते हैं, मल्टीपल कलर्स होते हैं, ठीक है। साइज में अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो आपका जो बेस्ट सेलिंग साइज है, सिर्फ आप एक ही साइज पे एडवर्टाइज करो, आप सारे साइजेस पे मत एडवर्टाइज करो, क्योंकि फिर क्या होगा, जब कस्टमर देखेगा तो वो रिपीटेटिव बन जाएगा, बार बार उसको सेम प्रोडक्ट दिखता रहेगा, क्योंकि सिर्फ साइज अलग है, ठीक है। तो जूते के केस मतलब साइज का अगर आपका वेरिएशन है तो आपका जो बेस्ट सेलिंग साइज है उस पे एडवर्टाइज करो, क्योंकि जब कस्टमर क्लिक करेगा परचेज करने के पहले, उसके पास ऑप्शन आ जाएगी सारे साइजेस की, और वो वहां से सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप कलर का वेरिएशन है, देन आप सारे कलर्स पे एडवर्टाइज करो, क्योंकि हो सकता है कि जिसने काला कलर का टी शर्ट या काला कलर का जूता नहीं खरीदा, वो शायद येलो कलर का टी शर्ट या जूता खरीद ले। तो कलर के केस में सारे कलर्स पे एडवर्टाइज करना, और आपके जो इसके केस में, साइज के केस में सिर्फ बेस्ट सेलिंग साइज पे एडवर्टाइज करना। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना जब भी आप अपने अगले कैंपेन्स क्रिएट करते हो। ओके, तो ये एक बेसिक चार्ट है सेलर्स, ये आई थिंक आपके सेलर लर्निंग सेंटर पे भी अवेलेबल है, तो इस पे मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। ये है कि बेसिकली आपका जो आस्क है, तो हर एक टाइम जब भी आप कैंपेन चलाते हो, एक चीज है जो आपको अपने माइंड में बहुत क्लियर होना पड़ेगा, वो है कि ये मैं कैंपेन चलाने वाला हूँ, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस कैंपेन से। क्या मैं चाहता हूँ कि मैं सेल और आरओआई दोनों लेके आऊं, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ आरओआई के ऊपर फोकस करूं, क्या मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ विजिबिलिटी के ऊपर फोकस करूं। तो बेसिकली जब भी आप कैंपेन चलाओगे, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव वाले प्रोडक्ट्स को एक कैंपेन में मत ऐड करना। आप एक प्रोडक्ट का सेट सिलेक्ट करना, एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना, और उन प्रोडक्ट को, जो वो ऑब्जेक्टिव से अलाइंड जो प्रोडक्ट्स है, उन पे आप एक कैंपेन चला दो। जैसे अगर मुझे आरओआई क्या ही फोकस है, और मेरे को पता है कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट है जिन पे मुझे आरओआई चाहिए, उन 10 प्रोडक्ट को मैं एक कैंपेन में चलाऊंगा। जहां पे मुझे विजिबिलिटी चाहिए 5 प्रोडक्ट पे और आरओआई चाहिए 5 प्रोडक्ट पे, उन दोनों प्रोडक्ट के सेट को मैं मिक्सअप नहीं करूंगा, उन पे मैं कॉमन कैंपेन नहीं चलाऊंगा, ठीक है। तो सेलर्स, ये प्रेजेंटेशन आपके सेलर लर्निंग सेंटर पे अपलोडेड है, प्लस ये डिस्कशन के बाद आपको इसकी एक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो मैं जो डेटा ड्रिवन स्लाइड्स है, मैं उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक बार अपने पास, जब आपके पास ये आ जाएगा, आप ये देख के इसका थियरी पढ़ के आप खुद ही समझ जाओगे कि रिकमेंडेशन क्या है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं क्विकली कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन पे। अब कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन दो केस में हो सकता है, एक होता है सीपीसी कैंपेन का और एक स्मार्ट आरओआई कैंपेन का। कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन की जब हम लोग बातें करते हैं, तो आप ये समझिए कि एक कैंपेन जो होता है, उसका सिर्फ 4 चीजें हो सकती है जो एंड सिनेरियो हो सकता है। पहला होता है लो आरओआई, सेकंड होता है लो विजिबिलिटी, थर्ड होता है लो कंजम्पशन, फोर्थ होता है फास्ट कंजम्पशन। तो अब ये जो स्लाइड है, इस पे आपको ये देखना है कि अगर आपका कैंपेन टाइप जो भी है, कि अगर आपका सीपीसी कैंपेन टाइप है या आरओआई कैंपेन टाइप है, इन दोनों कैंपेन टाइप्स पे अगर आपको इन चारों में से कोई भी सिनेरियो या इन चारों में से आप कोई भी सिचुएशन फेस करते हो, तो आपको एक्शन क्या लेना है। जैसे अगर आप एक सीपीसी कैंपेन में लो आरओआई देखोगे, तो आपको जो एलआईडीज परफॉर्म नहीं कर रही है, ये हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे डिसाइड करना है कौन सा एलआईडी परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो आपको नॉन परफॉर्मिंग एलआईडीज को पॉज कर देना है, आपको अपने कैंपेन की सीपीसी कमा देनी है, और आपको शायद स्मार्ट आरओआई कैंपेन क्रिएट करना है। अगर आप स्मार्ट आरओआई कैंपेन में देखते हो कि आरओआई फिर भी लो आ रहा है, तो आपको अपने आरओआई एक्सपेक्टेशन जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट आरओआई कैंपेन में अगर कैंपेन वो डिजायर्ड आरओआई नहीं दे पा रहा है, तो आपका कैंपेन बैकएंड से ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आप देख रहे हो कि रिड्यूस करने के बाद भी नहीं कर रहा है, तो आप एक बार उस कैंपेन को पॉज कर दो, एंड मे बी उसको देखो आपके कि कैसे आप उसका सेल्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सिमिलर वे में अगर विजिबिलिटी खराब है, तो सीपीसी के कैंपेन के इसमें आप सीपीसी को इंक्रीज करो, अगर विजिबिलिटी नहीं आ रही है तो आप अपना सीपीसी इंक्रीज कर दो।
अगर ROI कैंपेन है तो उसमें आप विजिबिलिटी ड्राइव नहीं कर पाओगे, जैसा कि मैं बोल रहा था, तो उस केस में आप उस कैंपेन को बंद करके CPC कैंपेन चला दीजिए। सिमिलरली स्लो कंजम्पशन और फास्ट कंजम्पशन का भी आपको दिया हुआ है कि आपको कैसे एक्शंस लेनी है, तो आप अकॉर्डिंगली ले सकते हो। सेलर्स, बिफोर आई मूव इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, एक चीज है कि ये जो सारा चीज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये रेगुलर बिजनेस डेज के रिगार्ड्स में बहुत ज्यादा वैलिड और एप्लीकेबल है। कंसिडरिंग के अगले 15 से 20 दिनों में हम एक फेस्टिव सीजन में एंटर कर जाएंगे, राइट? हम ऑलमोस्ट 1 महीने, सवा महीने के अंदर बिग बिलियन डे आ जाएगा, उसके बाद फिर वेव 1 का सेल आएगा, वेव 2 आएगा, दिवाली आएगी। इस पूरा जो 2 महीने का जो अक्टूबर और नवंबर पे आपका जो फेस्टिव सीजन रहेगा इस बार, उस पे आप ट्राई कीजिए कम से कम स्मार्ट ROI कैंपेन यूज करने का, क्योंकि हमारी लर्निंग पिछले फेस्टिव सीजन से यही है कि फेस्टिव सीजन के टाइम पे बहुत नए एडवर्टाइजर्स आते हैं। जो एस्टैब्लिश्ड एडवर्टाइजर्स है वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लान कर रखे हैं, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है ना, जो CPC का एक्सपोजर होता है प्लेटफॉर्म पे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस केस में क्या होगा, अगर आप ROI कैंपेन चलाओगे ना, वो कैंपेन कभी परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, और बाय द टाइम आप रियलाइज करके उसको फिक्स करने जाओगे तब तक में मोस्ट ऑफ द सेल पीरियड चला जा चुका होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये यूजुअल बिजनेस डेज के लिए बहुत वैलिड और बहुत एप्लीकेबल है, बट एक फेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्राई कीजिए कि कम से कम अपना एक्सपोजर स्मार्ट ROI में रखें। फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद आप अपने यूजुअल या रेगुलर मिक्स में वापस जा सकते हो। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि LID लेवल पे हम लोग या लिस्टिंग लेवल पे हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या क्या मेट्रिसेस होती है जो हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारे पास एड स्पेंड्स होता है जो कि टोटल एड स्पेंड्स होता है, हमारे पास रेवेन्यू मिल जाता है, हमारे को ROI मिल जाता है, हमारे को एक्शन रेट मिल जाता है, कन्वर्शन रेट मिल जाता है, ठीक है? अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भले ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का टाइम हो या कैंपेन ऑप्टिमाइज करने का टाइम हो, कुछ मैट्रिक्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे आपका एक्शन रेट, कन्वर्शन और ROI। ये 4 चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्हीं 4 के बेसिस पे हम पहले प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करेंगे और इन्हीं 4 के बेसिस पे हम आगे अपना लिस्टिंग भी ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है? तो आपको जो है कि आपको ये देखना है, आपको यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, आपको डाउनलोड के अंदर आपको 4-5 टाइप के रिपोर्ट मिलते हैं आपको। सॉरी सर, 1 सेकेंड। हाँ, तो इसमें आपको 4-5 टाइप के रिपोर्ट्स मिलते हैं। ये तो जो नए रिपोर्ट आए हैं, मैंने सर्च टर्म रिपोर्ट आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। प्लेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जैसा कि मैंने कहा था कि डिफरेंशियल प्लेसमेंट अब एक्टिव है, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका पैसा स्प्लिट हो रहा है, कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि होम पेज पे या प्रोडक्ट पेज पे आपका ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है और ROI कम आ रहा है, तो आप उस हिसाब से अपने CPCs को रिड्यूस कर सकते हो उन एवेन्यूज में से, ठीक है? अदरवाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वो कैंपेन के अंदर होगी ऑल लिस्टिंग रिपोर्ट या ओवरऑल लिस्टिंग्स रिपोर्ट। तो ऑल लिस्टिंग्स रिपोर्ट पे आपको क्या मिलेगा, आपको हर लिस्टिंग या हर प्रोडक्ट के बेसिस पे, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट उस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस मिल जाएगा। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितने क्लिक्स आए हैं, उस प्रोडक्ट का एक्शन रेट कैसा है या CTR कैसा है, उसके कितने यूनिट्स बिके हैं, ROI कितना मिल रहा है, कन्वर्शन कितना है। तो ऑल लिस्टिंग रिपोर्ट से हमें वो सारी चीजें मिल जाएंगी। अब वो मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग ये चार्ट को यूज करेंगे। अब बिफोर ये 150 का मैं चीज समझाऊं, हमने ये देखा था कि हमने जब कैंपेन बनाया था तो हमने देखा था कि हमने ग्रेटर देन 50 का नंबर लिया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये कहा था कि वो ग्रेटर देन 50 या 50 का जो नंबर था वो 1 वीक का नंबर था। एक हफ्ते में अगर प्रोडक्ट को 50 क्लिक मिलती है और 1% कन्वर्शन मिलता है तो मैं उसको पॉजिटिव मान रहा था। इधर क्या है कि हम लोग 150 कंसिडर कर रहे हैं। द रीजन बीइंग इज कि आप कभी भी अगर कोई कैंपेन चलाते हो, एक्सपेक्टेशन हमेशा यही रहेगा कि आप वो कैंपेन को एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते चलने दीजिए। उसके पहले अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हो तो वो शायद गलत डिसीजन होगा। कोई भी कैंपेन अगर 2 से 3 हफ्ता चलता है और उसमें जो नंबर्स एक्यूमुलेट होते हैं वो बेसिकली आपका रियल पिक्चर रहेगा। मैंने अगर आज कैंपेन चलाया और अगर मैं संडे को वो कैंपेन बंद कर देता हूँ और इसका रिपोर्ट रीड करता हूँ, देन विथ ऑल प्रोबेबिलिटीज
वो रिपोर्ट में रियल डेटा दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि शायद वो कैंपेन अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाया, वो कैंपेन को शायद जगह ही नहीं मिला था ताकि वो सर्व कर पाए प्रॉपर्ली, और इसीलिए जो नंबर्स है वो ऑब्वियसली डाउन ही रहेंगे। ठीक है, तो सिंस हम लोग 2 से 3 हफ्ता कैंपेन चला रहे हैं, तो इसलिए अब जो क्लिक्स है हम लोग रिपोर्ट के टाइम पे उसको 150 कंसिडर करेंगे। मैं आपको 2 लाइन आइटम समझा देता हूं जो आपके लिए समझने में आसान होगा, और अब बाकी का ये वाला शीट आपको मिल जाएगी, तो आप बाकी का लिंक करके आप समझ सकते हो कि आपको क्या एक्शंस लेने हैं। सबसे पहला लेते हैं हम लोग एक्शन 150 से नीचे है, मतलब 150 के नीचे उसको क्लिक्स है, एक्शन रेट या CTR हाई है, ROI मे बी हाई है मे बी लो है, दोनों ही केस पॉसिबल है। अब ये 3 जो डिटेल है ये हमें रिपोर्ट से मिल जाएगी। उसके बेसिस पे हम जो पहला चीज करेंगे वो है हम इस LID को क्लासिफाई करेंगे। हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? पहला है कि सिंस एक्शन 150 से नीचे है तो हम बताएंगे इसका विजिबिलिटी खराब है, लो विजिबिलिटी है। ठीक है, और सिंस इसका एक्शन रेट हाई है, इसका मतलब क्या है कि हाई परचेज इंटेंट है। मतलब ये प्रोडक्ट वही वापस CTR वाला कॉन्सेप्ट आ गया, कितनी बार दिख रहा है वर्सेस कितनी बार लोग क्लिक कर रहे हैं। तो अगर 10 में से 5 लोगों ने इसको क्लिक किया है, मतलब इसका 50% एक्शन रेट या 50% CTR है, जो कि बहुत अच्छा है। और जितना ज्यादा CTR होगा उतना ही इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर का परचेज इंटेंट जो है वो बहुत हाई है। अब अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे, हम एक नया कैंपेन बनाएंगे। जो CPC है हम उसको विनिंग बिड रेंज के अंदर लेके जाएंगे, हम बेस पे नहीं चलाएंगे, हम विनिंग बिड रेंज के अंदर लेके जाएंगे CPC को। और हम इस कैंपेन को तब तक चलाने देंगे जब तक हर प्रोडक्ट पे 150 के ऊपर क्लिक्स ना आ जाए। जैसे ही 150 के ऊपर क्लिक आएगा फिर हम लोग देखेंगे कन्वर्शन कैसा है। अगर अच्छा कन्वर्शन है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और अगर कन्वर्शन खराब है तो हम कैंपेन को पॉज कर देंगे, जो कि आपका ये वाला सिचुएशन है। फिर से सेम चीज है, 150 के नीचे क्लिक्स है या एक्शंस है। एक्शन रेट जो है वो इस बार खराब है, पिछली बार वो अच्छा था, इस बार वो खराब है। ROI अगेन हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। ठीक है, वापस से ये 3 डिटेल्स जो है ये हमें रिपोर्ट से मिल गई। अब इसको LID को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे? लो विजिबिलिटी बिकॉज 150 के नीचे क्लिक्स है, और लो परचेज इंटेंट। लो परचेज इंटेंट क्यों? जिनको भी ये दिख रहा है ज्यादा लोग इस पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें क्या एड्स ही मेरा एकमात्र सोल्यूशन है? आंसर है नहीं, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट का परचेज इंटेंट ही लो है तो आप एड से क्या ही कर लोगे। तो उसमें हमें क्या करना होगा? उसमें हमें पहले प्राइमरी इमेज देखना पड़ेगा, हमें उसका प्राइस देखना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट की रेटिंग देखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे, आप कुछ भी फ्लिपकार्ट पे आगे अगर सर्च करते हो, जो रैंकिंग पेज होती है उसमें ये तीनों चीजें दिखती है। उसमें आपको इमेज दिखता है, प्राइस दिखता है और रेटिंग दिखती है। तो पहले हम देखेंगे कि वो प्रोडक्ट का ये तीनों मैट्रिक्स ठीक है कि नहीं। अगर ठीक नहीं है तो पहले हम इन पे काम करेंगे, इनको सुधारेंगे, और उसके बाद हम कैंपेन चलाएंगे CPC को विनिंग बिड रेंज में डालते हुए, और कंटिन्यू करेंगे तब जब तक कि हर प्रोडक्ट को 150 के ऊपर क्लिक्स ना मिले। ठीक है, सिमिलरली अगर एक्शन 150 के ऊपर है तो क्या करना है, और नीचे है एक्शन रेट कैसे मूव कर रहा है, उसके ऊपर हमें कैसे एक्शन लेना है, वो इस शीट में हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। ये भी आपके सेलर लर्निंग सेंटर पे और सर्टिफिकेशन पे अवेलेबल है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप एक बार इसको डिटेल में समझिए। हम हर वीक अब कनेक्ट करेंगे एडवांस वेबिनार के साथ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप प्लीज अगले वेडनेसडे हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, और हमें फिर से उस पर अगर आपको कोई डाउट्स है तो वो हमें पूछिए, हम ट्राई करेंगे आपके लिए वो सॉल्व करने का। ओके, ये तो बेसिकली जस्ट सेलर टेस्टिमोनियल्स है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि जो बाय ऑर्गेनिक ने कहा था कि कि एक एडवर्टाइजिंग आपके लिए क्या चीजें अचीव कर सकता है। उसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है एडवर्टाइजिंग आपका टियरिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो हमने बहुत सेलर्स को ऐसे देखे हैं कि जो नए सेलर्स थे, जो ब्रॉन्ज सेलर्स थे, वो विद इन 3 मंथ्स या एक डार्विन साइकिल के अंदर, जो हम लोग इंटरनली फ्लिपकार्ट पे बोलते हैं, तो वो विद इन एक क्वार्टर ही ब्रॉन्ज से गोल्ड बन गए। बिकॉज जैसा हमने पहले देखा था कि एक 6 महीने में अगर आपका बिजनेस 2 से 3 गुना बढ़ सकता है, आपका सेल्स बढ़ सकता है, तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आपके परफॉर्मेंस बढ़ेंगे आपका सेलर टियरिंग भी मूव करेगा। तो टियरिंग एक बहुत ऐसा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और उसको जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आपने सर्टिफिकेशन अभी भी कंप्लीट नहीं किया है तो उसका लिंक आपके स्क्रीन पे है, तो प्लीज इस लिंक पे जाइए, लॉग इन कीजिए और अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए। ओके,
तो इसी के साथ हम आज के सेशन के एंड पे आते हैं। अब हम क्विकली चले जाएंगे Q&A पे। आई थिंक ऑलरेडी कुछ 40-45 क्वेश्चंस है, तो मैं ट्राई करूंगा जितना ज्यादा क्वेश्चंस हो सके मैं ले पाऊं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका शायद मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया होगा ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, तो मैं उन पे शायद अलग से नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो और अगर कुछ ऐसे अनआंसर्ड रह गया और आपको फिर भी क्वेरी है तो प्लीज आप अगले हफ्ते आइए और हमारे साथ वो सवाल प्लेस कीजिए। Okay, Mr. Ali, for weeks I have been trying to talk to the advertising team so that I can start with ads, but I haven't been able to speak to anybody. All I get are mails and do not get my concerns. Okay, so Mr. Ali, I'm not too sure आप किन से बात कर रहे हो. Ria, I think maybe we can just have this noted and we can have someone from the account management team to get in touch with Mr. Ali and we can try to help him out here. Okay, because if it is not category, then I think someone can help from the backend. We'll try to get in touch with you and help you solve your queries. Mr. Ali, I would recommend you to please share your email ID with us so that we can get in touch with you. Okay, Miss Harshita का question है कि which advertising is better for apparels. So Miss Harshita, see, जो advertising है, it is not basis on which vertical or which category you are in. ठीक है, there are, see, advertising अगर आप देखोगे तो there are only two variants, right? One is a CPC and one is a smart ROI. So now that is depending on how much margins do you have, what is your main objective. Okay, so if your main objective is visibility and sales, then you will have to go for a CPC campaign. If your objective is to only focus on ROIs and eventually scale up your business as and how situations happen, then you can go for a smart ROI campaign. Mr. Amol Gaikwad, I have just showed you the link to complete your advertising certification. It is also available within your advertising tab on the Flipkart seller dashboard. So please use that to complete your advertising. Okay, I have a very interesting question from Ms. Madhumita, which says if we keep 3% of ads sales as ad spend, it's not possible to run ads for a longer duration, maximum 1 or 2 weeks in a month. How to run for longer durations? Ms. Madhumita, see, again, advertising is something that is expected to be a long-term relationship between any platform and an advertiser, right? So if you're talking, and see, the advertising, the way of keeping 3% is not only just to consider, right? We are not talking about a situation wherein you are running advertising and you have not been able to move your sales from 1 lakh to 5 lakhs, right? Then it is something else which is going wrong. But say today you are doing 1 lakh sales in a month and you are spending 3,000 rupees. Next month, if you are able to do 2 lakhs or 3 lakhs, definitely it will give you more opportunity to reinvest a higher amount and give you that cushion with regards to your wallet strength. But yeah, if you are saying that month on month your sales are not going beyond 1 lakh and you are reinvesting 3,000 and every month on month, then it is something else which could be going wrong, which I would request you to kindly try to have a deeper look into your product portfolio and see what else is there that you can might be you want to fix it. Okay, I make smart ROIs every week. I have a question from Nishidha Arya. I'm sorry if I pronounce your name wrong. I make a smart ROI every week for bestsellers. So should I make weekly campaigns or change LIDs in existing campaigns as my ROI is too low? Okay, so if your ROIs are too low, right, you might want to pause that campaign, and take a step back. Also, a bigger suggestion would be do not run weekly campaigns. If you're running a campaign, you try to run it for a longer period of time. If you're running every week or if you're trying to run it at alternate weeks also, try to club all the budget that you have, put it in a single campaign and let it run for a longer period of time. Because advertising, as I was mentioning, since Flipkart advertising influences your ranking of the product, stopping a campaign will suddenly stop the ranking influence part also. So it is very important for us to grow steadily. Do not disengage with advertisement so frequently.
keep your engagement, whether if it requires even to invest some lesser amount of money, that's also fine, but do not disengage your investment into ads, because the moment you stop or pause a campaign, a lot of matrices at the back end immediately stop, which will again bring your product back to a square one where we will find it difficult to grow. Okay, Mr. Aman has said, I can see only one option under download, which is placement performance report. Mr. Aman, I would just, yeah, I think there has been a backend glitch sometimes, which is coming. So, I would request if you can just log in sometime later and check, you should be able to see the search term report as well. Okay, I have a question from Vanakara. If the product ratings are good, which is 4.7, and that's an excellent rating, and the ad clicks are more than 150, but low on conversion, what to do? So again, see, if the clicks are more than 150, but low on conversion, so typically I would assume that you are talking about a conversion percentage, which is to the tune of 1 or 1.2%. Okay, so if you're seeing that there are clicks and there are not enough conversion, then typically what you need to do is you need to understand that, there must be something else that you might need to figure out, right? It could be your pricing, it could be images. So when such a situation happens, what does it also mean is that people are coming into the product, people are clicking on your product, and people are bouncing off the product page. So they are not buying the product, but they are going off. So ads will not be the right solution there. If you're looking at something which you are wanting to do, it could be something with regards to the cataloging and the pricing, because if you continue to spend on ads, you will continue to spend more there, but it might be that your conversions don't get influenced. Is it possible to get an account manager for advertising? Yes, it is possible. So you could just paste your email ID here. Ria is on the call and she can just help to patch you with someone from the account management. And, we'll try to get in touch with you separately. Okay. Galaxy Trends, how to set expected ROI. So ROI setting is only available for Smart ROI campaigns, sir. It is not available on CPC campaigns. So, they both are different campaign types. So when you're selecting a campaign, which is a Smart ROI campaign, then you will get an option to select an ROI. Thank you. Okay, I have a question from Mr. Chirag Vashne. Suppose I'm running a campaign in kids dress vertical and I have 10 listings, in which 2 are best-selling dresses. So how do I separate those 2 products so that they don't consume my budget altogether? I think Mr. Chirag, I've just explained this in the earlier part. I'll just reiterate myself. So what you need to do is, if there are bestsellers, that means that they will automatically or organically be getting more clicks and more conversions than the rest of your portfolio. So it is okay if you run a campaign for 2 of your best-selling items separately and remaining 8 items in a separate campaign. So if you don't keep these 2 products and the remaining 8 products in the same campaign, then these 2 products won't actually sabotage your revenue of the other 8 products. So these 2 can run independently, and the other 8 you can focus on them and start growing them separately through a different campaign altogether. Okay. ओके, तिलक खाती जी का क्वेश्चन है कि हाय उमंग, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग करता है तो आरओआई और सीपीसी कौन सा सही रहेगा? मिस्टर तिलक, एक्चुअली फॉर एनी न्यू सेलर आरओआई इज नॉट द ऑप्शन, बिकॉज अगर हम लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम उसको ग्रो करें. तो हेंस हमारा काम यही रहेगा कि हम उस पर आरओआई कैंपेन ना चलाएं और हम उस पर सीपीसी कैंपेन चलाएं एंड हम उसको आगे लेके जाएं. Great. Mr. Jain, the decision is upon you. I believe that you should let at least a product to be in the system for
week or 10 days, and after that you start running a campaign, because वो week or 10 days में you will at least know how are your products getting placed on the platform. Okay, Sellers, I believe a lot of the questions that are here are very specific to your respective accounts. I believe that आप एक बार ये सारे questions अपने seller support team के through या रिया के साथ आप float कर दो, ठीक है? We will try to take as much as generic questions, because कि हमारे साथ almost 150 लोग हैं, तो अगर हम लोग एक एक seller specific discussion में चले जाएंगे तो in the interest of time वो possible भी नहीं होगा. So please write your questions back to us. So we will try to answer as much as possible from the back end. Otherwise, if you can just frame your questions in much more generic, which helps the other audience also to understand what is going wrong, what is going right, and you can come back to the next session. We will try to help to answer those. So with that, I think we will just close the session, because most of the questions that I see are either answered during the webinar. So आप एक बार जब recording मिलेगी, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपके बहुत सारे doubts है जो clear हो जाएंगे. Specific cases में एक बार मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर specific cases में हम ये देखते हैं कि मैंने ये particular चीज की और मेरे account में मेरे को ROI नहीं मिल रहा है, मैंने advertising किया but मुझे sales नहीं मिल रहा है, तो जो मैंने optimization के techniques आपको बताए हैं, आप उन पे क्वालिफाई करने का ट्राई करो, उन पे मैच करने का ट्राई करो कि आपके प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली क्यों आपका वो कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रहा है. क्योंकि जो मैंने स्क्रीन्स दिखाए थे, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का, प्रोडक्ट सिलेक्शन का, LID ऑप्टिमाइजेशन का, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का, उन सब के साथ आप ट्राई करो एक मैच बनाने का कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आई थिंक इधर जा रहा होगा, इधर का क्वालिफिकेशन है. तो उस केस में आप एक बार अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स है जो अनसॉल्व्ड है, तो प्लीज आप हमें उनको हाईलाइट कर दीजिए सेलर मार्केटिंग टीम के थ्रू से, तो हम ट्राई करेंगे एज मच एज पॉसिबल उनको आंसर करने का. ठीक है, थैंक यू सो मच सेलर्स फॉर ज्वाइनिंग. अब मैं क्विकली एक आपको पोल शेयर करता हूं आपके स्क्रीन पे. आप काइंडली वो पोल को देखिए और ये बताइए क्यों ना आपका how useful did you find today's session? Was it helpful, or you want us to improve on certain things? Your responses are very valuable to us, and we can design our next courses accordingly. You should be able to see the poll now. Please provide your responses here. Thank you so much, sellers. I think with that, we will wrap up today's session. Once again, thank you so much for joining. It was a pleasure talking to you all. We'll look forward to meet you again on next Wednesday between 3 to 4. So the agenda of the meeting for next Wednesday will also be shared with you. So kindly join in for that session as well. This is your host, Umang, signing off. Thank you and have a great day.